اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر 18 سال ہوئی تو والدہ سے عرض کیا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ادھر آپ کی والدہ جو تھی ضعیف تھی، 60 سال میں تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی جب آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی ہو گئی تھی تب غوث اعظم پیدا ہوئی تھی، اور جب آپ کی عمر 18 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ کی تقریباً 78 سال 78 سال کی عمر، اور والد کا پہلے ہی آپ کے کیا ہے سر سے سایہ اٹھ چکا تھا، تو ایسے میں والدہ سے اجازت لینا اور والدہ کا اجازت دے دینا یہ بڑے غور کی بات ہے۔ مقام غور یہ ہے کہ ان حالات کے اندر ایک ضعیف والدہ اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کی اجازت دے رہی ہے، اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 سال کی عمر میں نکلے ہیں گھر سے، تو آپ کی والدہ نے سب سے پہلے یہی عہد لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور اسی وعدے کی وجہ سے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اسی وعدے کو نبھانے کی وجہ سے 60 ڈاکوؤں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، بغداد پہنچے۔ بغداد جب آپ پہنچے ہیں تو آپ نے بغداد کے اندر جب علم دین حاصل کرنا شروع کیا تو خود فرماتے ہیں کہ ان بغداد کے زمانے میں 25 سال تک میں جنگلوں میں رہا ہوں، اور 25 سال جنگلوں میں ایسے رہا ہوں کہ میرے لیے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، میں جنگل کی گھاس پر اکتفا کر لیتا، درختوں کے پتوں کو کھا لیتا، اور رات و دن جو ہے میں اللہ کی عبادت میں اور اس کی ریاضت میں لگا رہتا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اولیاء کا سردار ہو، جسے رب تبارک و تعالی اپنی قسمیں دے دے کر کھلاتا ہو پلاتا ہو، اس کی عبادت کا عالم یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں دنیا کو چھوڑ کر 25 سال تک عبادت و ریاضت میں لگا ہوا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، ہم اپنے حال کو دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی نمازوں کا خیال ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ میں جو رزق کھا رہا ہوں یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے؟ کتنے ایسے ہمارے گھر کے لوگ ہیں یا ہم جو بزرگ ہیں ہمارے گھروں کے، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ ہر والد خیال کرتا میرا بیٹا بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے، ہر والد چاہتا میرا بیٹا اچھے سے اچھا ٹیوشن حاصل کرے، ہر والد چاہتا کہ میرا بیٹا نام کمائے، دنیا کمائے، لیکن کبھی بھی اس کی اخلاقی تربیت نہیں کرتا۔ وہ سامنے گالی بک رہا تو نہیں سمجھائے گا کہ بیٹا گالی مت بک، جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں سمجھاتا کہ ہاں بیٹا جھوٹ مت بول، کیونکہ جھوٹ نہ بولنے کی نصیحت غوث اعظم کو ان کی والدہ نے کی ہے۔ تو والدہ ہو یا والد ہو، کس طرح سے بیٹے کو پروان چڑھانا ہے یہ صرف کیا ہے گھر کے جو والدین ہوتے انہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھی ڈریس پہن کر اسکول جائے تو آپ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ کہیں کھڑے ہو کر راستے میں گالی تو نہیں بک رہا۔ آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا اچھے سے اچھا کھائے تو آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کہیں آپ کا بیٹا سگریٹ تو نہیں پیتا، گٹکا تو نہیں کھاتا، نشہ تو نہیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا تو نہیں کر رہا ہے۔ اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ نتیجہ یہ نکلتا کہ باپ اگنور کرتا رہتا، سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا، جوان ہوگا، ذمہ داری آئے گی، نبھا جائے گا، پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ باپ مر کر بھی چلا جاتا تو پھر فاتحہ بھی نہیں کرتا کہ چلے گئے، کیوں خرچ کروں میں ان کی فاتحہ کے لیے 4-5 ہزار روپے، کیوں میں کیا ہے نیاز کا اہتمام کروں، چلے گئے، دنیا میں جو کیا کمایا اس کا خود بھگتیں گے جا کر قبر کے اندر۔ یہی حال ہے۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے تھے جب بھی قبرستان جاتے تھے کہ تم جتنے بھی قبر والے ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے بعد تمہاری زمین و جائیداد کا وارثین نے کیا کیا ہے، کہ وہ تو ایسا لگ رہا تھا تمہارے مرنے کا انتظار کر رہے تھے اور تمہارے مرتے ہی انہوں نے کیا اپنی وراثت کو تقسیم کر لیا ہے۔ تو یہی دنیا کا حال ہے۔ انسان پوری زندگی جوانی تک جب پہنچتا ہے، جوانی کی دہلیز تک، تو انسان اسی طرح کیا ہے لاؤ بالی پن میں زندگی گزار دیتا۔ شادی ہو جاتی ہے تو 50 سال تک کمانے کی دھن میں نکال دیتا۔ تو جوانی تک تو ویسے نماز نہیں پڑھی کیونکہ جوانی خود دیوانی ہوتی ہے۔ جوانی کہاں مسجد میں کھینچ کر لاتی ہے جوان کو، وہ تو فلموں میں لے کر چلی جائے گی، پکچر دکھانے لے کر چلی جائے گی، ڈرامے دیکھنے میں مشغول کر دے گی۔ تو جوانی وہ خوش نصیب ہے نوجوان جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے کرتے ہیں۔
वरना जो जवानी है, जवानी का जो गर्म खून है, और जवानी का जवान होने का जो नशा है वो अलग ही है। फिर वो सजदों में आकर अपनी तौहीन समझता है, वो तो गालियां देने पर फख्र करता, लड़ाई झगड़े करने पर फख्र करता। आप देख अपनी सोसाइटी का जायजा लें और आप देख अपने इर्द गिर्द के लोगों को, नौजवानों को, कितने लोग हमारे कितने नौजवान गालियां बकते नजर आते हैं। मामूली सा अगर झगड़ा हो जाए तो वो सामने वाले को देखते भी नहीं है कि मेरी बाप की उम्र का है ये, उसे भी तमाचा लगाने के दर पर हो जाते हैं अगर किसी बूढ़े से अगर कोई गलती हो गई हो। ये नौजवानों का हाल। लेकिन हाँ, जिन पर अल्लाह का फजल होता है अल्लाह उन्हें ही अपनी मस्जिदों में बुला लेता है। तो इंसान जवानी यूं ही गुजार देता, शादी के बाद 50 साल तक कमाने में गुजार देता। और हदीस के मुताबिक जितना इंसान बूढ़ा होता जाता है इतना ही माल कमाने का लालच उसमें बढ़ता जाता। जितने उसके पैर कब्र में लटकते जाएंगे फिर वो ये सोचता जाता, अगरचे खुद कब्र में जा रहा है लेकिन उसकी फिक्र ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए जमा करके चला जाऊं, ज्यादा से ज्यादा। आप देखें कितने ऐसे कि जिन्हें चाहिए कि वो अपनी इस जिंदगी को अल्लाह की राह में आकर मस्जिदों में वक्फ कर दें, मरने वाले हैं, जिंदगी अब कभी भी धोखा दे सकती है, वेटिंग में चल रही यूं कह लें। 60 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या है, अल्लाह का फजल है कि इंसान हर दिन जो है जी रहा है, अल्लाह का फजल है। वरना 60 साल के बाद तो फिर क्या है, बाल सफेद हो गए, कभी भी मौत आ सकती है। तो ये वेटिंग में चल रहे हैं, कभी भी टिकट कंफर्म हो सकता है इन लोगों का। तो इन्हें तो यह चाहिए कि ये अब जितनी भी हमारी जिंदगी बची है अल्लाह की राह में इबादत में गुजार दें। लेकिन जो हदीस के अंदर फरमाया कि जितना इंसान बूढ़ा होता जाता है इतना ही कमाई का लालच उसके अंदर बढ़ता चला जाता। फिर वो ये चाहता चारों तरफ से क्या है, माल जमा कर लूं और औलाद के लिए जमा करके चला जाऊं। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं हराम तरीके से, अगरचे मैंने करोड़ों रुपए अपनी औलाद के लिए जमा कर दिए लेकिन इसके बाद तो मरना तो मुझे ही है। जमा करके जाएगा बेटों के लिए, फायदा उठाएगी औलाद और कब्र के अंदर हिसाब ये देगा। कितना अजीब काम है इंसान अगर अपनी जिंदगी पर गौर करे कि मैं अल्लाह के लिए जिंदगी गुजार रहा हूं या दुनिया के अंदर कहीं अपने लिए ही तो वबाल जान में तैयार नहीं कर रहा। हर इंसान गौर करे और अल्लाह के रसूल की इस हदीस पर अमल करे। हर इंसान को चाहिए कि अपने बेडरूम के अंदर अपना कफन भी तैयार रखे। जैसे अपने कपड़े रखे रहते हैं उसके शोकेस में आलिशान, ये कपड़े उस जब पहनूंगा, उसके फंक्शन में पहनूंगा, जुमे को पहनूंगा, तो अपना कफन भी तो तैयार करें। अपने कफन को भी रोजाना देखे कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं इस कफन को पहनूंगा, नंगा थोड़ी जाएगा। जैसे दुनिया में इंसान लिबास पहनता है ठीक इसी तरह से कफन भी तो पहन कर जाएगा। तो अपने कफन को भी अपने जीते जी क्या है तैयार कर ले। जैसे 1000-2000 का सूट खरीदता है, कफन भी चाहिए कि वो इतनी ही कीमत का कफन खरीदे जितनी कीमत के वो दुनिया में कपड़े पहनता, और बाकायदा उसे लटका कर रखे। जितनी भी बार वो अपनी अलमीरा खोलेगा उसे याद आएगा कि हाँ ये कफन है, इसे पहनकर मुझे जाना है। हर इंसान को अपने बेडरूम का जो बेड है बाकायदा उसके पीछे कागज पर लिखकर ये शेर लिख लेना चाहिए, हर दिन रात को पढ़ना चाहिए। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हर इंसान इस शेर को अपनी क्या है बेड के पीछे लिख ले बाकायदा, जब भी बेड पर लेटे इस शेर को जरूर पढ़े। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं और 4 ही वापस आते हैं, 5वां तो वही रह जाता है। हर इंसान अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, तुम अपनी जिंदगी को कैलकुलेट कर लो इससे पहले कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हें क्या हिसाब देना पड़े। तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हयात है आप उसको पढ़ें कि 25 साल गौसे आजम ने जंगलों में गुजार दिए। खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बल्कि इस कदर लागर और कमजोर हो गए, घास खाते, पत्ते खाते, दरख्तों की छाल खाते। गौसे आजम के 25 साल इस तरह से गुजरे हैं। और गौसे आजम के बारे में आया कि गौसे आजम ने बाकायदा 40 साल की जिंदगी अपनी ऐसी गुजारी है कि आप जब ईशा में वजू कर लेते तो फजर की नमाज अपने ईशा के वजू से पढ़ते थे। क्या मतलब इसका? रात को सोने से तो वजू टूट जाता। सीधा मतलब यही है कि गौसे आजम जब ईशा की नमाज के लिए वजू करते पूरी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, और फजर की नमाज अपने उसी ईशा के वजू से करते। और 1-2 साल की बात नहीं है, पूरे कंटिन्यू गौसे आजम ने 40 साल तक इस तरह से क्या है ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है।
یہ غوث आजम की रात का आलम है। हम अपनी जिंदगी देखें, हम में से कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ते हैं, कितने तो ईशा की नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि 70 रकत कौन पढ़ेगा, 2 रकत होती तो पढ़ के फ्री हो जाते जल्दी। कितने लोग फजर की इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि उठना पड़ेगा। लेट जो सोए हैं, मुंबई का जो क्या है टाइम टेबल है, 1-2 बजे से 3 बजे से पहले कोई सोता ही नहीं है। हालांकि ये आदत गलत है शरीय एतबार से भी। अगर आप रात को इतना जाग रहे हैं कि अगर आप फजर में नहीं उठ सकते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। आप इतनी जल्दी सोएं ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि फजर की नमाज में पढ़ूंगा। और जो इशारे आए हैं हदीस के अंदर कि इंसान को तुलुए फजर यानी ये सूरज जो तुलू होता है, तुलुए शम्स तक नहीं सोना चाहिए। ऐन उस वक्त जब सूरज तुलू होता है उससे पहले हर इंसान को उठ जाना चाहिए, नमाज फजर पढ़े। ठीक उसी वक्त जो है अल्लाह हर घर के अंदर रोजी उतारता, हर घर में रोजी उतर रही होती है। फरिश्ते बकायदा उस दिन का रिज्क लेकर उतरते हैं। कब तक ये रोजी बढ़ती रहती है? डेली जो रोजी बढ़ती है अल्लाह की जानिब से वो सूरज निकलने से पहले पहले तक है। लेकिन आप अपने घरों के हालात का जायजा लें। जब सूरज निकल रहा होता है तो हम तो नींद में सो रहे होते हैं, फरिश्ते बकायदा रिज्क लेकर आए हैं और हम अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। तो फजर की नमाज इसीलिए रखी है कि ताकि फरिश्ते जब रिज्क लेकर उतरे तो तुम अल्लाह की बारगाह में सजदे कर रहे हो, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिज्क में बरकत देगा। आज हर आदमी परेशान क्यों है कि मेरे रिज्क में बरकत नहीं? 40,000 कमाता हूं, महीना जब पूरा होता है तो पता नहीं चलता कि 40,000 कहां चले गए। तो अपनी जिंदगी को देखें कैसे तुम्हारे शब रोज गुजर रहे हैं। गौसे आजम ने बकायदा 40 साल तक हुजूर गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। और हजरत शेख मोहम्मद बिन अबिल फत फरमाते हैं कि गौसे आजम को तो दिन में मैंने देखा कि आप वादो नसीहत करते, गरीबों की मदद करते। मेरा ख्याल ये हुआ कि मैं गौसे आजम की रात को भी देखूं कि गौसे आजम रात किस तरह से गुजारते हैं। तो ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं जब गौसे आजम की बारगाह में रात को रुका तो मैंने देखा कि हुजूर गौसे आजम की रात का यह आलम था कि बकायदा तिहाई रात तक तो आप जो है नफल पढ़ते रहे। जब तिहाई रात हो गई, गुजर गई, तो आप जो है अल्लाह की बारगाह में जिक्र और अस्कार में क्या मशगूल हो गए। यहां तक के तहज्जुद का वक्त आया, आपने तहज्जुद पढ़ा। तहज्जुद के बाद गौसे आदम के बारे में फरमाते हैं कि आप फिर अपने घर से उस वक्त निकले जब फजर का वक्त हो चुका था। तो हुजूर गौसे आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये शान कि जिनकी रातें भी इबादत इलाही में गुजरती हैं। और फिर खुद गौसे आदम फरमाते हैं कि मैंने बकायदा 15 साल तक हर रात में कुरान खत्म किया है। रोजाना 15 साल तक, 360 दिन होते हैं एक साल में, अंदाजा लगाएं 15 साल में गौसे आदम फरमाते मैंने बकायदा हर रात जो है कुरान करीम खत्म किया है। आज हम में से कितने लोग कुरान करीम पढ़ते हैं? कितने लोग सुबह को उठकर एक पारे की तिलावत करते हैं? कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है? या अल्लाह का फजल है कि वो कुरान पढ़ना सीख गए। लेकिन अगर कुरान पढ़ना सीख गए हैं तो अगर इस नियत से भी अगर कोई कुरान पढ़े ना सुबह सुबह, क्या परवरदिगार आलम तू मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा, तो कुरान की बरकत से उसके रिज्क में भी बरकतें होने लगेंगी। जिस नियत के साथ कुरान करीम आप पढ़ेंगे, आप डेली रूटीन बनाएं, आप डेली नाश्ता करते हैं, आप डेली अपने ऑफिस जाते हैं, आप डेली क्या है शाम को वापस आते हैं, आपके जो दुनियावी काम है उनका रूटीन बना हुआ है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट कुरान करीम का भी आप बांधे अपनी लाइफ में कि सुबह का जो सबसे पहला मेरा वक्त होगा मैं कुरान करीम तिलावत करूंगा। बहुत से को अगर टाइम सुबह को नहीं मिल रहा तो रात को अपने बिस्तर पर सोने से पहले कम से कम 1 पारा या आधा पारा कुरान करीम की तिलावत करें। होगा क्या कि तुम कुरान पढ़ोगे, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता चला जाएगा। तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। बहुत से लोग जो है अल्लाह अल्लाह करते हैं जबान से, लेकिन दिल में अल्लाह नहीं है। बहुत से लोग हैं जो जानते हैं खुदा है, अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के खौफ उनके दिलों में बिल्कुल नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ हो तो किसी को भी ये कहने की जरूरत ना पड़े कि साहब नमाज पढ़ा करें। अगर अल्लाह के आपके दिलों में खौफ है तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप झूठ मत बोला करें। आप अपने बच्चों की तालीम को भी क्या है, तालीम पर भी तवज्जो दें, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी सिखाएं। और आप गौर करें जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब एक निशानी ये जाहिर होगी, लितुअल्लिम लिगैर दीन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत की करीब जो निशानी जाहिर होगी वो ये होगी, जो मुसलमान कहलाने वाले होंगे, अपने आप को मुसलमान कहलाएंगे, वो दीन के अलावा अपने बच्चों को सारी चीजें सिखा डालेंगे, दीन नहीं सिखाएंगे।
इल्म भी हासिल कराएंगे तो दीन के अलावा, दीन को छोड़कर सारे दुनियावी उलूम हासिल करा देंगे। तो आज अगर हम अपने बच्चों का जायजा लें, हर एक अपने बच्चों को तालीम हासिल करा रहा, लेकिन दीन की तरफ कितने रागिब हैं, कितने लोग दीन को तरजीह देते हैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन जो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया वो तो होकर रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि कुर्ब क़यामत लोग दीन के अलावा तालीम हासिल करेंगे, तो आज वही हो रहा है। इसी को इंसान कामयाबी समझ रहा है, लेकिन ये सिर्फ दुनियावी कामयाबी है। याद रखें, कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुन व अबका। कुरान ने कई जगह पर यह इरशाद फरमाया, ये दुनिया जो है आखिरत की खेती है, जैसा दुनिया में बोओगे वैसे ही आखिरत में जाकर काटोगे। दुनिया में जैसे जिंदगी गुजारोगे आखिरत में वैसे ही पाओगे। और याद रखो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम दुनिया में मुसाफिर हो। मुसाफिर सफर करता 3 दिन में पहुंच जाता मंजिल पर। कुछ सफर इतने दूर हैं 4 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं। यही जिंदगी का सफर है कि तुम्हारा जो ये सफर है, किसी का सफर 60 साल का है, किसी का 70 साल का है, कोई 50 साल के अंदर अपना सफर पूरा कर लेता, कोई 40 साल के अंदर उसकी सफर की इंतहा खत्म हो गई। लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, वो आखिरत है। सबको अल्लाह के हुजूर खड़ा होना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सबको जवाब देना है। और इंसान गौसे आजम का नाम अगर चले रहा तो गौसे आजम की तालीमात पर अमल भी करे। गौसे आजम नमाज नहीं छोड़ते थे, गौसे आजम झूठ नहीं बोलते थे। गौसे आजम खुद फरमाते, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि इंसान जो है भूखे को खाना खिलाए। तो गौसे आजम का लंगर कितना मशहूर है। गौसे आजम के दस्तरखान पर हजारों हजार लोग रोजाना सुबह शाम खाना खाते थे। बल्कि गौसे आजम की बारगाह में जो लोग तोहफे पेश करते थे, हदिये पेश करते थे, तो शाम आती नहीं थी, लेकिन गौसे आजम सारा हदिया नजराना अपने अपने फकीरों में तकसीम फरमा दिया करते थे। बल्कि गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि एक मरतबा जब मैं सफर पे था तो दरिया के किनारे मैंने एक शख्स को देखा, परेशान हाल है, बहुत ज्यादा परेशान और मजबूर महज बनकर खड़ा था। मैंने उससे पूछा क्या माजरा है, तो वो गौसे आजम से अर्ज करता कि मुझे दरिया के पार बड़ा इमरजेंसी काम है, बड़ा जरूरी काम है, दरिया के किनारे, दरिया के उस पार मुझे जाना है, लेकिन ये दरिया, ये जो कश्ती वाला है मल्लाह, ये मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है और बगैर पैसों के ये मुझे दरिया पार कराने के लिए तैयार नहीं है। तो गौसे आजम ने उस वक्त तमन्ना की, जेब में हाथ डाले अपने जुब्बे के, तो देखा कुछ भी नहीं था। तमन्ना की काश अगर मेरे पास इस वक्त पैसे होते तो मैं इसे हदिया कर देता। अभी तमन्ना की, रब तबारक व तआला अपने बंदों के काम कैसे पूरे कराता है। इतने में ही गौसे आजम का एक चाहने वाला उसी कश्ती से उतरा और गौसे आजम की बारगाह में उसने बाकायदा 40 दिनार पेश कर दिए, 40 अशरफियां पेश कर दी। गौसे आजम ने जब 40 अशरफियां ली तो जो सामने मजबूर बंदा खड़ा था कहा, ले अपना भी किराया दे इसमें से, और जो मल्लाह कश्ती का, कश्ती चलाने वाला, वो बाकी सारे अशरफियां उसे दे दे और उससे कह देना गौसे आजम का फरमान है कि आज के बाद किसी फकीर से पैसा ना मांगे, सबको फ्री में दरिया पार कराए। और फिर गौसे आजम ने बाकायदा उसे अपना जुब्बा भी अता फरमाया उस फकीर को। तो गौसे आजम की शान है कि आप गुरबा परवरी कितनी करते थे। आजकल हाल यह है कि जितने भी गौसे आजम के कादरी सिलसिले के जितने भी पीराने पीर हैं, आप उनका हाल देखो, सब मुरीदों को लूटने पर लगे हुए हैं। कौन ऐसा पीर है जो अपने क्या है मुरीदों में बांट रहा हो? कौन ऐसा पीर है जो अपने आसपास के इर्द गिर्द के गरीबों को भी देखता हो? बस अपनी जेब क्या है मोटी होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। और ये सबक उन तमाम लोगों के लिए भी है कि जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जिनके पास पैसा है, वो गरीब को देखकर मुंह ना फेरा करें। वो आपका अगर पड़ोसी परेशान हाल है, वो अगरचे नहीं कह रहा, लेकिन आपको मालूम है कि इसका बाप जो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसे पैसों की जरूरत है, तो पूछ लिया करें कि पैसों की तो आपको जरूरत नहीं है, ये दुनियावी मामला है। दुनिया में जैसा आप मामला करोगे, रब तबारक व तआला तुम्हारे साथ भी वैसा मामला फरमाएगा। तो गौसे आजम की हयात, गौसे आजम को पढ़ें। सिर्फ नारे लगाने से, नारे गौसिया लगाने से कोई फायदा नहीं है। गौसे आजम की जिंदगी को देखें। गौसे आजम इतने पाए के बुजुर्ग होकर, सरदारे औलिया होने के बाद भी गौसे आजम इस कदर अल्लाह से डरने वाले और इस कदर गुरबा परवरी करने वाले, इस कदर इबादत और रियाजत में मशगूल होने वाले। याद रखें, एक न एक दिन हर इंसान मरकर चला जाएगा और जो दुनिया में किया होगा वही आखिरत में पाएगा। कुरान इसी को कहता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब है वो शख्स जिसने अपने आप को साफ सुथरा कर लिया। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला,
और अल्लाह का नाम लेकर वो नमाजें पढ़ने लगा। फिर कुरान आगे कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, फिर याद रखें वलल आखिरतु खैरुन व अबका, ऐसे ही बंदों के लिए आखिरत फिर क्या है, सबसे ज्यादा बाकी रहने वाली बेहतर है। और मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की उसका तर्जुमा सुमात करें। कुरान के अंदर एक आयत है, कुरान की आयत क्या है, अगरचे वो काफिरों के लिए है कि जब अल्लाह काफिरों को फरमाएगा इन्हें जहन्नम में डाल दो, और जब जहन्नम में वो डाल दिए जाएंगे, और हदीस के अंदर इसकी वजाहत यह है कि वो जब जहन्नम में काफिर जल रहे होंगे तो आग उन्हें वो नीचे से ऊपर को फेंकेगी, जैसे तंदूर में आग उबाल मारती है। तो ये जो काफिर लोग हैं, इन आग जहन्नम में नीचे से ऊपर लाया करेगी, और ऊपर हैं दारोगे जहन्नम हजरत मालिक, जो फरिश्ते हैं, बाकायदा उनसे आकर ये सवाल करेंगे, अर्ज करेंगे। तो 1000 साल तक तो जो फरिश्ते हैं दारोगे जहन्नम है, वो 1000 साल तक तो इनकी बात भी नहीं सुनेंगे, लेकिन ये 1000 साल तक चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे काफिर, और इसी तरह ऊपर आते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे आग के अंदर। तो फिर हजरत मालिक जो है वो पूछेंगे क्या कहना चाह रहे हो, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह तक हमारा एक पैगाम पहुंचा दो। अल्लाह की बारगाह में भी फिर 1000 साल लग जाएंगे जवाब देने में। फिर अल्लाह पूछेगा फरिश्ते से क्या कह रहे हैं ये, तो फिर वो यही कहेंगे ऐ परवरदिगार आलम, तू हमें इस बार दोबारा और दुनिया में भेज दे। कुन्ना नामल सालिहन गैरिल लदी कुन्ना नामल, हम इस बार इन्ना नामल सालिहन, हम इस बार दुनिया में जाकर बड़ा नेक काम करेंगे। जो पहला हम काम करते थे वो काम अब नहीं करेंगे, दोबारा भेज दे, बड़ा नेक काम हम करेंगे। फिर कुरान आगे क्या कहता, अवलम नुअम्मिरकुम, रब फरमाएगा क्या मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिंदगी नहीं दी थी कि जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर लेता। क्या मतलब इसका, 60 साल तो बहुत हो गए नसीहत हासिल करने वाले के लिए। फिर कुरान आगे कहता है वजाकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास तो मेरा रसूल भी आया था, उसने भी समझाया, लेकिन फिर भी तुम नहीं आए। फिर कुरान आगे कहता अब हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में पड़े रहो।